Welcome to your IT class of your course, vocational course 402, and we are starting with our your subject specific skills of Unit 2. Unit 1 we have done in the first term, that was your advanced digital documentation, and today we will start with your Unit 2 electronic spreadsheet advanced. A spreadsheet, it is same as your Microsoft Excel, but here we are talking about your open office. As you all know, we are dealing with your part B section. We are dealing with your documentation and spreadsheet, your PowerPoint, and your database. All these things we are going to do with your open office. So I'll share you the PDF completely after some time. But today I'll tell you about how to analyze data using your the first session. We are covering here 4 sessions, and today we'll be doing session 1, that analyze data using scenarios and goal seeks, and the subtopic is about consolidating data. Consolidating data means to copy data from one range of cells to another and then running some functions on that particular data. तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि हमने डेटा को अलग अलग जगह से अलग अलग रेंज से लेकर कंबाइन करा है और उसको फिर टोटल किया है. ठीक है, एंड आई tell you with the help of the example so that these things are clear to you. And then my second topic after consolidation, my second topic will be creating subtotals. Total within a column, that is subtotal. I'll just tell you. For that, let's open your open office. Yes, this is my open office. I just double click over it and we will open here spreadsheet. ठीक है, ओपन ऑफिस में आपके सारे कंपोनेंट्स हैं. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका राइटर है जो हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में लिया था, और स्प्रेडशीट में हमारा ओपन ऑफिस कैल्क है. हम इसको ओपन ऑफिस कैल्क भी कहते हैं. एज यू कैन सी इट इज क्लियरली. सो दिस इज सिमिलर टू योर एक्सेल विंडो. It is almost 90% similar to your Excel window. So now I have created, to save time, I have created the worksheet and I'll just show you. I have created on my desktop to save the time. I'll just show you. Okay. So this is my sheet 1 where I have created my 2 years data. 2018 Rams marks in April, May, June, and then in 2019 April, May, June, and then I want the total. Okay, I want the total of that student in both the years corresponding to the months. So for this, what we will do, that we don't need to write any formula over here. We just need to use the function of consolidate. How we will do? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस रेंज को डिफाइन करना है. रेंज मीन्स, देखो 2018-19 हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारी कैलकुलेशन होनी है वो यहाँ से होनी है. तो आई एम डिफाइनिंग दिस रेंज. A2 से लेकर मैंने D5 तक पहले ही इसको डिफाइन किया हुआ है, रेंज 1. राइट, मेरा यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट था A2. मैं आपको ये वापस करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले कर दिया था. ठीक है, D5 ये मेरी रेंज थी. ओके, बाय डिफॉल्ट ये मेरी रेंज थी और मैंने इसको, देखो रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं. व्हेन वी सिलेक्ट दिस, यू कैन सी A1 टू D5. हमने इसको इसके ऊपर लिख दिया. ठीक है, लिख के हमने उसको एंटर कर दिया, वो हमारी रेंज डिफाइन हो जाएगी. सो फॉर योर टाइम बीइंग मैंने ये पहले से ही रेंज 1 को डिफाइन किया हुआ था, A2 से लेके D5 तक. आफ्टर दैट अगेन आई सेलेक्ट F2 से लेकर I5.
F2 से लेके I5 तक मैंने यहाँ पर रेंज 2 का नाम देकर इसको डिफाइन किया था. Fine, I have given the definition of this. I have defined that range. Once again, I will tell you how to define it. Like I just click here, जहाँ से भी आपको लेना है, from here to till the end. You can see the cell in the name box. You can see the सेल एड्रेस, सेल रेंज K2 से लेकर 95 तक की रेंज है. तो हमने इसको डिफाइन कैसे करना है? हमने कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर ऐसे लिखना है और एंटर की दबानी है. वो हमारी रेंज डिफाइन हो जाएगी. कैसे पता लगेगा कि डिफाइन हो गई है? जस्ट चेक इट, चेक दैट रेंज और वहां पे उसका नाम आ गया है. ठीक है, दिस इज हाउ यू डिफाइन द range. Now we have done our work. Now we want to combine these totals somewhere else. What we're gonna do? We'll just click on data menu, consolidate option, sum. अब कंसोलिडेट में वो कहता है कि क्या आपको फंक्शन चाहिए. हमारे पास ये लिस्ट है. हम सम फंक्शन यूज कर सकते हैं, काउंट, एवरेज, अगर हमको एवरेज निकालनी है, मैक्सिमम नंबर देखना है, मिनिमम देखना है, प्रोडक्ट, काउंट, एक्सेट्रा. सो टू स्टार्ट विद आई जस्ट यूज सम फंक्शन. अब सम फंक्शन उसको ही विल आस्क सोर्स डाटा रेंज, कहाँ से सम उठाना है, किस रेंज से. सो विल डिफाइन रेंज 1 एंड एड इट. तो हमारी ऊपर आ गई है. ठीक है, देन अगेन गो टू रेंज 2 एंड देन add this. Okay, I have added two range, one range and 2. Fine. Then I'll tell you that now अब हमने अपनी इसको ऐड कर दिया है. अब हम वो हमें पूछेगा कि आपने रिजल्ट को कहाँ लेकर आना है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से भी रेंज को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं. बट जस्ट टेक एनी सेल. से आई एम टेकिंग, सॉरी अगेन. ठीक है, ये मेरा दोबारा से करना पड़ेगा मुझे. आई सोर्स रेंज 1 add, then again range 2 add, and then he's asking me copy results to. copy results के लिए मैंने यहाँ पे suppose D B8 ले लिया. ठीक है, बिल्कुल अप्रैल के नीचे वाला ले लिया, B8. you can see here copy results to sheet 1 $B8. ठीक है, and I'll just click on OK. So you can see that my result has been copied. और जो मेरा ये टोटल होकर आया है, अगर आप इसको ऐड करें 2018 के अप्रैल को और 2019 के अप्रैल को, 60 and 67 127, 45 and 54 मई का 99, 34 and 32 again 66. So this is how ये करस्पॉन्डिंगली. इसी तरह से अजय का अप्रैल, ठीक है, अजय का मई और इसका जून, देन मोहन का अप्रैल, मई, जून. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कंसोलिडेशन. ठीक है, आई जस्ट शो यू द पीडीएफ. दिस वाज माय फर्स्ट टॉपिक अबाउट data consolidate. Now when you will read this pdf, it will be very easy to know you, to make you familiar with the things. what is source data range. ठीक है, हम कॉपी रिजल्ट्स करते हैं, फिर हम कैसे उसको कंसोलिडेट करते हैं. राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज माय क्रिएटिंग सब टोटल्स. ठीक है, नाउ सब टोटल क्या होता है? सब टोटल इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड इंसर्ट. ठीक है, as the name suggests, सब टोटल का मतलब होता है कि टोटल सब टोटल की ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसके अंदर इंटरनल टोटल होगा. ठीक है, जैसे आपने कोई इंडेक्स बनाया तो उसके नीचे उसका छोटा छोटा सब टोटल आ गया. एक तो होता है ग्रैंड टोटल, नहीं, इट विल बी अ सब टोटल विद इन अ एरे ऑफ
कॉलम्स, एरे होता है एक रेंज, एक ग्रुप. सो आई टेल यू हाउ वी डू इट. अगेन कम बैक टू योर ओपन ऑफिस कैल्क. शीट 2 मैंने प्रिपेयर की हुई है आपके लिए. मैंने ये एक परफॉर्मा प्रिपेयर किया है कि जिसमें डेट है, सेलर का नाम है कि सेलर कौन सा पर्सन है, आइटम कि हम क्या चीजें ले रहे हैं, और क्वांटिटी हमने क्या सामान लिया है. ठीक है. एंड लास्ट में हमको टोटल चाहिए उस चीज का. ठीक है. और अलग अलग डेट्स को रैंडमली आया हुआ है. ठीक है. यू कैन सी 1 जून को कंप्यूटर से हमने कीबोर्ड 5 लिए हैं, फिर माउस लिए हैं, फिर टेक्नो से कीबोर्ड लिए हैं. तो हम ये इसको जो आइटम्स हैं कि कीबोर्ड हमने किस किस से लिए हैं, कितने लिए हैं. ठीक है. 5 6 सी 5 keyboards, then one again 6, and then here 2. That means how many keyboards we have taken? 8 keyboards. So likewise mouse 3, then 3 6, then 8. Pen drives how many? 3. तो ये सब टोटल इसका कैसे आएगा? So you getting me? Now what we'll do, we'll just select this table जो हमने बनाया है. We'll go to data, go to subtotals. It will ask you that first group में आपने क्या लेना है. तो ये हमारे सारे आ जाएंगे इसमें फील्ड्स जो भी हमने बनाई हुई है. तो हम सबसे पहले आइटम वाइज लेंगे. आइटम क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि कीबोर्ड कितने आए मेरे टोटल, माउस कितने आए हैं, पेन ड्राइव्स कितनी आई है. ठीक है. एंड क्वांटिटी वाइज कि आइटम मेरा क्या आया है और वो कितना आया है. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन आइटम, ग्रुप बाय आइटम, एंड देन क्वांटिटी. और हमने फंक्शन कौन सा यूज करना है? सम. आई जस्ट क्लिक ओके एंड सी माय सब टोटल हैज कम. अपने आप चेंज हो गया. अब कीबोर्ड चाहे ओम कंप्यूटर से आ रहा है, टेक्नो से आ रहा है, या दीपक कंप्यूटर से आ रहा है, कि हमको तो जो कीबोर्ड का है एक सब टोटल तैयार हो गया है. दिस इज नाइस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उसका सब टोटल आ गया है और फिर उन सब टोटल्स को ऐड करके हमारा ग्रैंड टोटल आ गया है. राइट. अगर मैं इसको अनडू करूं, इफ आई गो बैक, ओके, और मैं यहाँ पर इसका टोटल देखती हूँ. व्हाट इज द टोटल? राइट. सी द टोटल इज 5 3 8 9 12 14 15 17 18 19 19 ही हमारा टोटल है. तो जब हमने अपना फंक्शन लगाया है, once again I'll show you. I went to data tab and subtotals. और मैंने इसमें क्या ग्रुप करा था? मैंने करा था item and quantity, and then I click on OK. और ये मेरा सब टोटल आ गया है. फाइन. अगेन ऑल्सो आई कैन गो. अब ये तो मेरा ऐसे आ गया है आइटम वाइज. मैं सेलर वाइज भी कर सकती हूँ. हाउ? आई क्लिक ऑन डेटा, subtotals. Okay. Once again, I have not selected this range. I have to select this range. Okay. Then I went to my. One second, मुझे इसकी स्पेलिंग ठीक करनी है टेक्नो की, नहीं तो एरर आ जाएगा. ठीक है. स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए आपकी. I just select this. Then I click on data tab, subtotals. अब मेरा जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में मैंने क्या करा है? सेलर को लिया है. मैंने सेलर वाइज भी देखना है कि सेलर से कौन सी क्वांटिटी आ रही है. ठीक है. एंड आई जस्ट क्लिक ओके. सी फर्दर इसको एक वो हो गया है कि कीबोर्ड तो आ रहा है, पर कीबोर्ड भी आगे किससे आया है? पहले दीपक से इतने आए हैं, फिर ओम कंप्यूटर से इतने आए हैं, फिर टेक्नो से इतने आए हैं, फिर उसका टोटल. इसी तरह से कीबोर्ड का ग्रैंड टोटल 8 आ गया. इसी तरह से माउसेस का आ गया है. तो ये फर्दर उसकी वो रिफाइनमेंट हो गया है. ठीक है. इसी तरह से आप एक थर्ड ग्रुप भी बना सकते हैं. ये व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? दिस इज बेसिकली इट इज यूज्ड टू एनालाइज योर बिल. ये जो मैंने बिल बनाया है उसकी एनालाइज, उसकी वो एक प्रॉपर वो हो रही है. ठीक है. कि हाउ आई एम कमिंग टू नो व्हाट थिंग्स आई एम गेटिंग इट. I can make maximum 3 groups. Okay, in a bill, in a detailed chart, I can make in a subtotal table, I can just make
3 ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स में मैंने इसको ले लिया सपोज आइटम and quantity. Let's see what will happen. सी, ठीक है, ये क्या हुआ है, ये आपका सेलर वाइज भी आ गया है और उसके बाद आइटम जो आई है आपकी आइटम की क्वांटिटी आ गई है, ठीक है, सेलर वाइज आई है फिर उसके बाद आपकी आइटम वाइज भी आई है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ग्रैंड टोटल आपका हाउएवर उतना ही रहेगा। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग आवर सब टोटल्स। So this was very interesting and I hope it is easy. So in the next video, I'll tell you about your what if scenario. Okay, I'll tell you about, then only we will complete this session 1. I'll tell you about goal seek. Goal seek आपने 8th standard में पढ़ा हुआ है, and scenario and your what if analysis. Okay, children, till then, take care. Have a nice day. Thank you so much.